So again, welcome to my channel again, and today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series. So before starting this lecture, if you haven't subscribed my channel, I want you to subscribe my channel, and for more videos you have to like and share these videos. And so now let's move towards our topic. So today we are going to discuss how we can create navigation menus in our ASP.NET Core application. ठीक है, so आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम जो है वो अगर नेविगेशन मेन्यूज वगैरह ऐड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, तो वो किस तरह से ऐड करते हैं। सो यहाँ पर हम एक सिंपल सा एक कंट्रोलर बनाएंगे और उस कंट्रोलर के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर। So first of all, I'm going to create a controller, or let's name this controller as uh, इसको मैं नाम दे देता हूँ, let's name this as student controller। ठीक है, okay, so I have added a student controller here, or after that I will add a model here. Before adding the model, I also want to add two classes, and first class will represent the branch। ठीक है, so it will be an enum, and I want to add like branch none, IT, HR, let's say finance, or let's say CSE. So these are some of the branch that I have declared in the enum। ठीक है, so यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन कर दिया, और लेट्स ऐड another enum, and let's say we want to store the gender. For gender purpose, we have created a enum, and we know we have to specify two values. One is the male, another one is the female. So now after specifying these, so now let's come to the our model। ठीक है, so okay, so I have declared them wrongly, so these should be in the model class। So let's say okay, and here gender, okay, so I have add these in the model। So now after adding these two classes, now I will add another model class that will represent the student entities। So let's say student। So now here I will define the properties that I will need in the student model। So first of all, prop and integer, I want to store the student ID, so let's say std id। So after that I want to store the name of the student, so prop, and let's say string, and I want to store the name of the student, so this will represent the student name, and also I want to store the email of the student, so public string. You can use the keyword for some reason this branch is creating some error, so I'm going to remove this and add these again। So let's say I want to add a branch, so let's add this branch। Okay, I'm going to use only one class here, branch, so let's say it will be an enum, and it will have properties like none, IT, and comma finance and CTE। ओके, सो यहाँ पर आ जाते हैं, और ये देखें अब हमारे पास एरर यहाँ से जा चुका है। सो बिकॉज आई हैव फर्स्टली डिफाइन दिस हेयर इन द कंट्रोलर फोल्डर, सो इस वजह से ही हमारे पास एरर आ रहा था। सो उसके बाद जो है वो हमने एक और क्लास ऐड की थी, दैट वाज एन इनम, और वो इस इनम के अंदर हम क्या डिफाइन कर रहे थे, जेंडर्स को डिफाइन कर रहे थे। सो यहाँ पर हम बोल देते हैं दिस विल बी एन इनम, और यहाँ पर आके हम बोल देते हैं मेल कॉमा फीमेल। ओके, let's save this। So let's come to our student model, and public
gender and create this property here and get set. So now after adding these वैल्यूज़, ठीक है, सो हमने यहाँ पर ये डिफाइन कर ली हैं। सो अब हम चलते हैं अपने फोल्डर्स की तरफ और हमें कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करवानी है बिकॉज वी वांट टू इम्प्लीमेंट द नेविगेशन मेन्यू। सो नेविगेशन मेन्यू के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड बूटस्ट्रैप, ठीक है। सो अगर हमें बूटस्ट्रैप की नीड है तो बूटस्ट्रैप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सो बूटस्ट्रैप के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ तो क्या करें कि हमने सीखा था कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग द लाइब्रेरी मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर libman.json की फ़ाइल मेरे पास ऑलरेडी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बूटस्ट्रैप ऑलरेडी इंस्टॉल है। और हेयर यू कैन कम इन द लिब फोल्डर एंड यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पर बूटस्ट्रैप ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें फर्दर बूटस्ट्रैप इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि बूटस्ट्रैप किस तरह से ऐड होती है, सो यू कैन सी माई वीडियो ऑन हाउ टू ऐड बूटस्ट्रैप इन ASP.NET को, ठीक है। तो आप को जो है वो वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उससे आप ये सीख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप किस तरह से ऐड करवा सकते हैं। सो अब हम आते हैं कि हमारे पास बूटस्ट्रैप ऐड है, तो उसके बाद अगर हमें कोई इमेजेस वगैरह दिखानी है, हाँ, तो फिर वो इमेजेस जो है वो हम इस फोल्डर के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे दो इमेजेस मौजूद हैं, ठीक है, इमेज 1 एंड इमेज 2, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ फर्दर इमेजेस, यू कैन ऐड दीज इमेजेस हियर, ठीक है। सो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर जैसे लोगो है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो ऐड करवानी है तो आप उनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू यूज़ द कस्टम CSS, तो मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल आ रही है site.css, ठीक है। इसके अंदर जो भी मेरी कस्टम CSS है वो अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द मेन फोल्डर। सो अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन कर दिखाऊं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम जो है वो पढ़ते आ रहे हैं किसको, हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते आ रहे हैं टैग हेल्पर्स को। तो जब हम नेविगेशन मेन्यू बनाते हैं तो नेविगेशन मेन्यू के अंदर हम जो हमारे पास एंकर टैग हेल्पर होता है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो आज की इस एप्लीकेशन के अंदर बनाने का मकसद ही यही है कि जब हम अपना नेविगेशन मेन्यू बनाते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, तो उसके अंदर जो है वो आपके पास टैग हेल्पर को किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे ASP.NET के एंकर टैग हेल्पर को, तो उसी को बनाना हमारा यहाँ पर आज मकसद है, उसी को प्रैक्टिकल के थ्रू हम अचीव करना चाहते हैं। सो नाउ ये हमने अभी तक सीखा भी है कि अगर हम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं किनको, हम जो है टैग हेल्पर को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें टैग हेल्पर्स को व्यू इंपोर्ट फाइल के अंदर इंक्लूड कराना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो चीज़ें इंपोर्ट कराई हुई हैं, यानी मॉडल्स को इंपोर्ट कराया हुआ है और उसके साथ मैंने ऐड टैग हेल्पर यानी सारे टैग हेल्पर्स को यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है और यहाँ पर नेम स्पेस स्पेसिफाई किया हुआ है। सो यू हैव टू डू इट मस्ट, ठीक है, बिफोर यूजिंग दी टैग हेल्पर आपको ये चीज़ें इंपोर्ट करानी है। उसके बाद हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ और हमने एक कंट्रोलर क्रिएट किया है, लेकिन उस कंट्रोलर को स्पेसिफाई करने से पहले हमें एक लेआउट की नीड है, ठीक है, क्योंकि नेविगेशन मेन्यू बनाना है तो उसके लिए हमें लेआउट की नीड है। तो हम अपने लेआउट को क्रिएट करने जाते हैं, तो हम यहाँ से व्यूज़ के फोल्डर में जाते हैं और हेयर आई विल क्रिएट अ न्यू लेआउट और लेट्स से न्यू आइटम and I want to add the layout, so let's specify the layout, result layout, और इसको मैं नाम दे देता हूँ nav, ठीक है। सो मैंने जस्ट इसको एक nav का नाम दे दिया और अब हम यहाँ पर आकर जो है उसको बनाते हैं। सो अब हम आते हैं और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फाइल्स को ऐड करवाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से जो है वो लिंक्स को ऐड करवाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक, और हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, अगर कस्टम CSS कोई अप्लाई की है तो वो ऐड कर देंगे, या फिर हम जो है CSS को यूज़ करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप तो हाइपर लिंक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिब का फोल्डर आ रहा है, ट्विटर बूटस्ट्रैप, उसके बाद CSS में जाएंगे और यहाँ से आके हम bootstrap.min.css को इंक्लूड करा देंगे, ठीक है।
तो सिंपली bootstrap.css को भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने लास्ट में पढ़ा था इन्वायरमेंट पे, जब हम डेवलपमेंट फेस में काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर bootstrap CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे bootstrap CSS को अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर jQuery को ऐड कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, पहले bootstrap.js को इंक्लूड करा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पर आके jQuery को इंक्लूड कराते हैं, ठीक है। तो सोर्स और उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर लाइब्रेरी और इसके अंदर JS में जाएंगे और JS में जाकर bootstrap.min.js को ऐड करवा लेंगे, ठीक है। min को भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं और jQuery को भी इंक्लूड कराना है तो यहाँ पर आएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर हमने jQuery को डाउनलोड, तो यहाँ पर jQuery और lib और यहाँ पर आते हैं lib, हमारे पास फोल्डर का नेम है यहाँ पर, अच्छा ठीक है। So here I have to specify the source and now here tutor bootstrap and in the JS I'm not able to get the root, so let's move here JS, my JS. Okay, so I haven't added the jQuery, so I have to add the jQuery. So jQuery के लिए what I have to do, I can use the CDN also, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, लेट्स से कि आई एम गोइंग टू यूज द CDN ऑफ jQuery, सो लेट्स यूज द jQuery CDN, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पर सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप CDN यूज़ कर रहे हैं तो CDN कैसे यूज़ करेंगे, और अगर आप जो है वो डायरेक्टली स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी आप डाउनलोड करके क्यूरीज को यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे, यानी डाउनलोड करके आप फाइल्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हमने देखा, ठीक है। ये हमारी डाउनलोडेड फाइल्स आ रही हैं, ये हमारी CDN से आ रही है और ये भी हमारी डाउनलोडेड फाइल है। तो उसके बाद अब आते हैं हम अपने कोड की तरफ और अपना जो है वो मेन्यू वगैरह क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक div बनाते हैं और let's name div this div will be the main div and I'm going to add a class container here, or after that I'm going to create a navbar and in the navbar I am going to add a class, or this class will have the navbar and navbar expand, और navbar expand के अंदर हम sm यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम डार्क कलर लेना चाहते हैं तो bg डार्क, बैकग्राउंड इसका डार्क आ जाएगा और navbar डार्क, ठीक है। सो ये हमने क्लासेस स्पेसिफाई कर दी और उसके बाद हम यहाँ पर आके लिंक्स क्रिएट करते हैं। तो ए टैग हमने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है, उसके अंदर क्लास लगाई और उसको हमने क्लास दिया navbar, यहाँ पर आकर ब्रांड, और यहाँ पर आकर आप देखें यहाँ पर हम अपने कंट्रोलर्स जो ASP के जो टैग हेल्पर्स हैं उनको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने कहा कंट्रोलर का नेम क्या है हमारे पास, यहाँ पे कंट्रोलर जो मैं यूज़ करूँगा इस सिनेरियो के अंदर, तो आपको पता है मैंने स्टूडेंट के नाम से एक कंट्रोलर बनाया तो मैंने वो स्पेसिफाई कर दिया। व्हाट विल बी दी एक्शन, तो यहाँ पर आके मैंने एक्शन स्पेसिफाई कर दिया, तो दिस विल टारगेट टू द इंडेक्स एक्शन। और हेयर इफ़ आई हैव टू यूज़ अ इमेज सो आई कैन स्पेसिफाई हेयर द इमेज, ठीक है। सो यहाँ पर इसको बनाने के बाद नाउ हेयर आई कैन स्पेसिफाई द इमेज ऑल्सो। So let's say I want to specify the image and I want to use the image like this one, ठीक है। और उसके बाद उसकी width और height सेट कर देते हैं। So let's say 30 and here I want to use the height as 30, ठीक है। So this is the brand I have created or you can see कि I have utilized the tag helper here, ठीक है। So after that let's create a button for toggle, so let's add the button। so बटन के ऊपर हम यहाँ से क्लास लगा लेते हैं और let's navbar। so what I am going to do, I will stop the video here, ठीक है, और I will copy paste the code that I have implemented already। so for अगर क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो इस वजह से जो है मैं इस कोड को
कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद आपको फर्दर दिखाते हैं. So here I have created a button. Okay, so you can see I have created a button और उसके बाद मैंने collapsible menu बनाया है और उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोलर यानी लिस्ट जो है लिंक्स यहाँ पे बनाई है. एक लिस्ट की लिंक बनाई है, एक क्रिएट के नाम से लिंक बनाई है, एक अबाउट के नाम से लिंक बनाई है और यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट की जो है लिंक यहाँ पर क्रिएट की है. सो दिस विल बी माय layout. And yeah, now you can see here I have another div that is using the render body. So any specific content that is other than this layout will be targeted here. ठीक है. So layout क्योंकि हमने डिस्कस किया है तो layouts में क्या होगा कि जहाँ पर ये render body दिया हुआ है वहाँ पर आपके पास दूसरे views से जो डेटा एक्स्ट्रा होगा जो अलग होगा वो इस जगह पर आके represent हो जाएगा. So now after adding this now I will move towards my controller, and in the controller we are going to add some methods. So let's come to our controller, and in the controller part first of all what I am going to create before here first of all let's क्योंकि आई एम गोइंग टू यूज़ दी मॉडल्स तो मैं यहाँ पे मॉडल्स को ऐड करवा देता हूँ एम्प्लॉय टेस्ट ऐप मॉडल्स एंड हेयर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ private list of students. So we have a student and let's name it std and the new list of students. New list student. Okay, so after that we will create the constructor of the controller. So public home controller, and in the constructor what I am going to do, I will pass some employee data. Okay, so here I have added a student list, or here I have added 3 students. So you can see okay, I have created the controller constructor, and here I have created the list of the students, and here I have added 3 students. ठीक है, so यहाँ पर मैंने 3 students का data add किया है. So now first of all I am going to use my index page and pass the list of students. So I will pass the student list here, and now I will create the view of my student index page. ठीक है, so यहाँ पर आता हूँ मैं ऐड करवाता हूँ व्यू को, और व्यू को ऐड करवाने के बाद because I am going to use another layout here, and this layout is going to be nav, and I want to display the uh, data regarding my students. So add this here. Okay, so in this view I am going to write some code. So I have that code written already, so now I will copy paste this code. So firstly on this page what I have done, I have added the model. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ मॉडल यहाँ पे क्योंकि हम स्टूडेंट मॉडल की लिस्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर ही स्पेसिफाई कर दिया है, और उसके बाद हमने एक डिफ क्रिएट किया जिसके अंदर हमने लाया कार्ड डेक, और यहाँ पर हमने स्टूडेंट की लिस्ट को गेट करवाया है, और यहाँ पर कार्ड के हेडर के अंदर हम स्टूडेंट का नेम शो कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर उसकी इमेज शो करेंगे. So because I have a different image here, so I am going to represent that image 2 here. And further what I have done, okay, I have created a footer, and here I am going to type my controller name, and my controller name is student, and there I want to display a details page. So here I have created the ASP action as detail, and in the route id I am passing the student id. So basically there will be a link, ठीक है, that will represent a button, and on that button you will get a view option, and once you click that view option यानी आप यहाँ पे view के बटन को क्लिक करेंगे, so you will be redirected to the details page passing that student id. ठीक है, और आपको स्टूडेंट की id जो है वो वहाँ पर रिसीव होगी. और देन हेयर I have created 2 other buttons, and that one is the added and another one is the delete. So let's run this project and see how we are getting the display here. Because this image is very large, so let's add some width and height here. So let's say 40, and height will be also 40. So let's run this again.
So basically there was something error. That error was that I forgot to add the relation as style sheet. So the functionality of the bootstrap was not showing on my page. So once I add this, and now if I run this if I run this page, okay, so you will see that I will getting the list of student. So let's run this student. So here you can see I am getting the logo. These are the links which we have created. These are the students that we have created on the student page. You can see we are getting the student name here. This is the picture that we have selected for all the students. This is the student name Adil. This is the Khalid. We have created 3 students, and now we have created 3 buttons. Okay, if you see if I create if I click on the view, so it is directing to us on the student controller, and details is the action method, and it is passing the student id. So now let's go and implement the details function. ठीक है, तो हम अपने कंट्रोलर की तरफ आते हैं और कंट्रोलर में जाते हैं, और हमारा कंट्रोलर था स्टूडेंट कंट्रोलर, और यहाँ पर आके अब हम डिटेल्स का यहाँ पे जो है वो कोड करते हैं। ठीक है, सो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ। सो यहाँ पर आते हैं पब्लिक action result, I action result, and then so here and the method name should be details, and here I have to receive an id, and here I am going to create a student std1, और let's say std डॉट, ये हमारी स्टूडेंट की लिस्ट जो है उसके अंदर हम अप्लाई करें फर्स्ट और डिफॉल्ट, और here we are simply passing the s dot, we are checking the student id और जो हमें रिसीव हुई है यहाँ से वेरिएबल में। ठीक है, सो ये हमने यहाँ से रिसीव की। अब जो स्टूडेंट की आईडी पे क्लिक होगा उसका डेटा यहाँ पर हमारे पास std1 में रिसीव हो जाएगा, और देन वी विल रिटर्न द व्यू। ठीक है, so let's pass std1, and after this let's create the view for this page. Add view, details, and we are going to use the same layout page that we have created in this application. So this is our detail page. Simply first of all we have to add the model, and we are going to use the student model here। और उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पर एक डिटेल्स का पेज का कोड करके रखा हुआ है पहले से ही, तो मैं यहाँ से उसको पेस्ट करूँगा और देन आई विल शो यू। Okay, so this is the code. Here I have created a header, and this header will display the name of the student of which we are getting details, यानी जिस स्टूडेंट की हम डिटेल्स यहाँ पर देखना चाह रहे हैं उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, उसकी स्टूडेंट आईडी, ईमेल, ब्रांच और उसकी जो जेंडर है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ पर सेम इमेज जो अभी हमने मेन पेज पर देखी थी वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप इंडेक्स पेज पे देखते हैं तो इंडेक्स पेज के ऊपर हमने सिर्फ जो है क्या किया है, सिर्फ उसकी स्टूडेंट आईडी और उसका नाम शो किया है, और डिटेल पेज के अंदर हम उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। ठीक है, सो अब जिस स्टूडेंट के व्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसकी आईडी हमारे फंक्शन को पास होगी, एक्शन मेथड को, और फिर उसी की जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। सो लेट्स रन दिस। So here I'm going to use the student. So these are the student. Let's view the आदिल details. So जैसे ही मैं आदिल पे क्लिक करता हूँ, so ये आपके पास देखें कार्ड फॉर्मेट के अंदर स्टूडेंट डिटेल्स आ रही हैं आदिल की। ठीक है, स्टूडेंट आईडी 102, ईमेल आ रही है उसकी, ब्रांच एंड देन जेंडर, और यहाँ पर 3 बटन आ रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड 3 buttons here: बैक, एडिट एंड डिलीट। ठीक है, वी विल सी हाउ वी कैन एडिट, डिलीट, or we can implement this back button, ठीक है, in the next lectures, upcoming lectures. So this is basically the concept of how we can create a basic navigation। ठीक है, और नेविगेशन के अंदर अभी हमने देखे नेविगेशन, अगर हम नेव बार में जाते हैं, so we have just created the
बटन, ठीक है। तो यानी लिस्ट के ऊपर, यानी अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और लेट्स से हम ये डिटेल्स के पेज पे जाते हैं, अगेन डिटेल्स के पेज पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ और स्टूडेंट पे मैंने यहाँ पर पास किया यूआरएल के अंदर। सो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं और यहाँ से खालिद पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए खालिद का रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं लिस्ट पे क्रिएट करता हूँ तो लिस्ट पे क्योंकि मैंने इंडेक्स मेथड पास किया हुआ है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, सो वी विल बी अगेन बैक टू दी इंडेक्स पेज, ठीक है। अब क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो क्रिएट का क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर जो है वो एक्शन मेथड क्रिएट नहीं किया है, ना व्यू क्रिएट किया है, सो वी आर नॉट गेटिंग एनी डिस्प्ले हेयर, ठीक है। सिमिलरली अबाउट एंड कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको लिंक्स क्रिएट करना सिखा दिए कि आपने लिंक्स बना दिए अपने लेआउट के अंदर और उनका पास सेट कर दिया, यानी जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यूआरएल में क्या पास हो रहा है, स्टूडेंट इज द कंट्रोलर एंड अबाउट इज द एक्शन मेथड, ठीक है। और ये हमने कहाँ सेट किया है, ये हमने एंकर टैग हेल्पर की मदद से सेट किया है। यहाँ पर ये देखें एसपी कंट्रोलर एसपी एक्शन, ठीक है, एसपी कंट्रोलर एसपी एक्शन, ठीक है। so you can also create your navbar using this particular code। so आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्दर टैग हेल्पर्स को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।